Salam, everybody. I hope you're doing well. Welcome to the class. Salam, everybody. Let's see. Let me just quickly share the link. Assalamu alaikum, Ariba. Assalamu alaikum, Hasnat. How's it going? Thank you, Hasnat. Inshallah, Allah Ta'ala barakat dale. Let's quickly begin. This is May, June 16, 4-2. So if you guys can get the paper out, that'll be great. ताकि तुम लोग भी सॉल्व कर सको. अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम अशर, अस्सलाम वालेकुम सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम फैज़ान. सुबह बखैर. Indeed, what a great time to study. आप नोटिस कीजिएगा अगर आप रात को सोए हुए हो तो इस टाइम पे आपके दिमाग बहुत फ्रेश फील करता है. If you have slept, and if you haven't slept, then this is probably the worst time to have a class. चलें. On that note, guys, this is May, June 16, 4-2, and we're starting off with the first question. Gravitational field strength. Gravitational field strength क्या होती है? It is defined as the force of gravitation per unit mass. Geez, Wave, this lecture will be available on YouTube, definitely. Of course. Part B. The nearest star to the sun is Proxima Centauri. This star has a mass of 2.5 in 10 to the power 29 kgs and is the distance of 4.0 to 10 to the power 13 kilometers from the sun. The sun has a mass of 2 in 10 to the power 30. State why Proxima Centauri may be assumed to be a point mass when viewed from the sun. So ये point mass वाली कहानी क्या होती है? Point mass वाली कहानी होती है कि जो स्टार का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर यहाँ पे और ये स्टार है. अब इस स्टार का जो भी डायमीटर या रेडियस होगा वो बहुत छोटा होगा. सो why does Proxima Centauri appear to be a point mass? The reason for that is that the radius of the star is extremely small as compared to the distance between the star to the sun. Make sense, everybody? So far, so good. आपको पता है ना कि हम
जब भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखते हैं, F is equals to gmm over r square. Let me write that down properly. F is equals to gmm over r square. इसके अंदर ये जो m और m होता है, ये पॉइंट masses होते हैं. Part 2 कहते हैं calculate the gravitational field strength due to Proxima Centauri at a distance of 4 into 10 power 13 kilometers. अस्सलाम वालेकुम अफान, क्या हाल चाल है? The gravitational field strength due to Proxima at a distance of 4 into 10 power 13 kilometers. अब gravitational field strength होती है force of gravitation per unit mass. Force of gravitation is gmm over r square divided by the mass. So ये बच जाएगा gm over r square. मुझे ये बताओ तुम लोगों ने जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, you should be able to answer this question, और नहीं पढ़ा हुआ even then you should be able to answer this question. ये जो m बचता है, ये कौन से वाला mass होता है? छोटे वाला या बड़े वाला? अस्सलाम वालेकुम अफान, अस्सलाम वालेकुम राफे, how's it going? All right. So G is equals to GM over R square में ये जो M होता है, obviously बिल्कुल बड़े वाला mass होता है, the bigger one. So now let's find out what is the gravitational field strength. The value of G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into the mass of the star, which is Proxima Centauri. Proxima Centauri का mass कितना है? 2.5 into 10 raised to the power 29 divided by the distance 4 into 10 raised to the power 13 into kilometers को हमेशा याद रखो meters में convert करना है into 10 raised to the power 3 whole square. Solve करें इसको please अपने calculator में जवाब निकालें. I am also doing it. See, I have my calculator with me. You guys also do it. अभी करो. So 6.67, 10 is to the power minus 11 times 2.5 times 10 is to the power 29 divided by 4 into 10 is to the power 16 whole squared. Well done, Arshia. Your answer should be 1.04 into 10 is to the power minus 14 Newton per kg. याद रखो आपके आंसर्स हमेशा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होते हैं? हेलो मुस्कान, हाउ इज इट गोइंग? मुस्कान इज आवर ऑलराउंडर, जो जहां जरूरत पड़ती है, whichever function of PWNA I need help in, Muskan is the person I go to. 1.04 into 10 minus 14 Newton per kg. Well done. The answer is 2 to 3 significant figures. Now, next part, the gravitational force of attraction between the Sun and Proxima Centauri. The gravitational force, अब आपने ऑलरेडी जी तो निकाल लिए, सो अब आपने इसको सिर्फ m से मल्टीप्लाई करना है. You've already done everything, so आपको पूरा gmm over r square लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली m into g कर दो, बिकॉज अब एक ही तो मैथ रह गया. आप ऑलरेडी प्रोक्सिमा सेंटोरी का मैथ यूज कर चुके हो, तो मुझे बताओ अब किसका मैथ यहाँ पे लिख रहे हैं हम? ये कौन सा मैथ होना चाहिए, किसका मैथ होना चाहिए? This should be the mass of what? Shabash. This should be the mass of the sun. Well done. So 1.04 into 10 is to the power minus 14, ये तो g की वैल्यू हो गई, times the mass of the sun, which is 2 into 10 is to the power 30, multiply and get the answer.
Shabash Manur. Well done, Arshia. The force of gravitation turns out to be 2.08 into 10 raised to power 16 newtons. I'll write that over here, 2.08 10 raised to power 16. जवानों एक बात याद रखना कि हमेशा जो आंसर है ना फाइनल वो डॉटेड लाइन के ऊपर देना, हवा में नहीं छोड़ना, बिकॉज एग्जामिनर उसके ऊपर कभी कभी मार्क्स काट लेता है, काटने नहीं चाहिए बट कभी कभी काट लेता है कि फाइनल आंसर डॉटेड लाइन पे क्यों नहीं लिखा हुआ. So always write your final answer on the dotted line, even if you've shown it mid-air. Before going ahead, मैं पहले रिमाइंड करा दूं कि 3 चीजें होती हैं, mass, length और time. All of you know. ये जो mass होता है ना, इसका यूनिट हमेशा याद रखो क्या होता है, जो आप कैलकुलेशंस में यूज करते हो. कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं मैं. कैलकुलेशंस में मास का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है. शाबाश. और ये कभी नहीं भूलना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिमेन लाइक दिस फॉर एवर एंड एवर. Well done. So mass is in kgs, length is in meters, and time is in seconds. Well done. Shabash. Part C कहता है, suggest quantitatively why it may be assumed that the sun is isolated in space from other stars. Now, when they mention this word quantitatively, दो लफ्ज होते हैं, एक होता है quantitatively और दूसरा होता है qualitatively. Qualitatively means that you have to explain in words. Quant is something that you will hear very frequently in uni, and that's how you will come to know. But actually पहले से बताना चाहिए, quantitative का मतलब होता है numbers के through. Got it. अब आपको कभी भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो बहुत से लोग पीछे से कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं कि ये कहाँ से सवाल आ गया. इसका हमेशा ताल्लुक होता है, याद रखो, पीछे वाले पार्ट से जो आपने निकाला होता है. कि जब भी ये पार्ट सी वगैरह आता है ना, जिसके अंदर थोड़ा सा वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन बताओ विद रेफरेंस टू समथिंग, वो हमेशा बेस्ड होगी ऑन द प्रीवियस पार्ट. तो हम देखते हैं हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला क्या. हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला है कि फोर्स बिटवीन द सन एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी इज दिस. This is the force. Now, if you go back and if you notice that the nearest star to the sun, उसने एक बड़ी important line लिखी थी कि उसने एक बड़ी ही important line लिखी थी कि जो स्टार सन के सबसे करीब है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है. तो मुझे बताओ कि ये जो नियरेस्ट स्टार है इसकी फोर्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए या सबसे कम होनी चाहिए. जो स्टार सबसे करीब होगा सन के, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सन बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी. बहुत ज्यादा होगी, जाहिर है, क्योंकि बहुत करीब है उसके. लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लो कि अगर मैं सन का मास पकड़ूं which is 2 × 10⁻30 and I just find out what the acceleration is based on the numbers that I already have, the force of attraction is 2.08 into 10⁻16. That is the force, and divided by the mass, which is 2.0 into 10⁻30. आप खुद अंदाजा निकालो कि एक्सेलरेशन आ रही है 10⁻, रफली मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं कि ये और ये कट जाएंगे, तो एक्सेलरेशन आ रही है 10⁻14. Now, is that acceleration very big or very small? That acceleration is very small. Does that mean that the force has a lot of effect on the sun or very little effect? Very little effect. और अगर very little effect है तो उसका क्या मतलब है कि सन के ऊपर फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही? नहीं लग रही ना. इसलिए हम कहते हैं कि सन is technically isolated in space
from other stars. जो स्टार सबसे करीब है वो तो फोर्स लगा नहीं पा रहा, और जो दूर है वो क्या फोर्स लगाएगा? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड आइसोलेशन? का मतलब होता है कि वो आप पे कोई फोर्स ही ना एक्सर्ट कर पाए, आप पे एक्सेलरेशन ही ना, फोर्स एक्सर्ट हो रही है लेकिन मास इतना बड़ा है कि वो फोर्स पर यूनिट मास की वैल्यू कुछ नहीं रहती. सही है. सो द आंसर टू दिस इज, since the acceleration is very small, the force will have negligible effect on the sun. ब्रैकेट में आगे लिखो ड्यू टू इट्स लार्ज मास. ये नहीं समझ आया राफे. इसमें समझने वाली बात ये है कि सन का मास बहुत बड़ा है, ठीक है? तो अगर मैं एक स्टार हूं जो कि बहुत करीब हूं टू द सन, तो मेरी फोर्स ऑन द सन शुड बी very strong. And if my force on the sun is strong, then I would say that the sun is not isolated. sun के मैं हूं, मैं अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करता हूं क्योंकि मैं सन पे एक फोर्स लगाता हूं जो कि सन को हिला के रख देगी. अब अगर मैं तुम्हें वो प्रूफ करके दे रहा हूं कि वो जो सन के ऊपर फोर्स लग रही है वो तो ना होने के बराबर है, तो मुझे बताओ कि वो जो स्टार्स उसके इर्द गिर्द हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू होगी? मतलब क्या उनकी कोई औकात होगी? और अगर उनकी कोई औकात नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे कि सन इस स्पेस में अकेला है या उसके इर्द गिर्द बड़ी चीजें हैं जो उस पर एक फोर्स लगा रही हैं? हम कहेंगे सन अकेला है क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो ना होने के बराबर है. तो देखो ना 10⁻⁻14 एक्सेलरेशन आ रही है, तो खुद सोचो कितने जीरोस हैं. डज दैट मेक सेंस? आइसोलेशन समझ आई तुम्हें? आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि आप के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो ना होने के बराबर है. Like right now, I'm isolated in this room. There's nothing, nobody to push me, nobody to pull me. If somebody pushes me and pulls me, then that means I'm not isolated. Mariam Ali, why don't we take small m to be the point mass of the star? Where? हम सन के ऊपर फोर्स निकाल रहे ना मरियम. मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि सन आइसोलेटेड है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि सन के ऊपर जो फोर्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सन के मास डिवाइड करूंगा ना. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि ये सन है और इसके इर्द गिर्द ये एक छोटा सा एक सितारा है जो बहुत करीब है उसके, लेकिन ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है इसके ऊपर, जो फोर्स आती है सन के ऊपर, वो फोर्स नेग्लिजिबल है. वो नेग्लिजिबल किस तरह है? क्योंकि मास ऑफ द सन इतना बड़ा है कि वो एक्सेलरेशन बहुत छोटी हो जाती है. Adam, very true. Absolutely. I hope it's clear now, Mariam. Guys, moving on. Question number 2 देखो. शाबाश. The equation of state for an ideal gas is given by the expression PV is equals to nRT, where R is molar gas constant. State what is meant by N. जवानों फोकस करो, कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करो. ये ऐसा जबरदस्त टाइम होता है दिन का जहां पे ना आपको इंस्टाग्राम के मैसेज आने हैं, ना आपको व्हाट्सएप आना है, ना आपको कोई पिंग नोटिफिकेशंस आनी है. सारी दुनिया सो रही है. यूज दिस टाइम. आप याद रखिएगा कि इस टाइम के अंदर आप जितना पढ़ लेंगे आप पूरे दिन में नहीं उतना पढ़ पाएंगे. ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना. That if you're able to focus in this time,
जो आप काम ये अगले 1-2 घंटों में कर सकते हो वो आप पूरे दिन में करने की कोशिश करोगे तो बड़ा मसला पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन में यू आर सो डिस्ट्रैक्टेड. So state what is meant by n. N is the number of moles. इस टाइम पे सिर्फ आपको एक ही आवाज आएगी, वो है चिड़ियों के चहचहाने की. How many of you can hear birds outside? It's something that you usually miss because you're asleep. When you wake up by 7, this is gone. So n is the number of moles and T stands for thermodynamic temperature. याद रखना, खाली टेम्परेचर ना लिख देना. Thermodynamic temperature. Got it? Moving on. Part B. An ideal gas is held in a container of volume 2.4 in 10 to the power 3 cm cube and pressure 4.9 times per 5. The temperature of the gas is this. Exactly. So you are going to apply PV is equals to nRT. अब उसने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रूव करके दो. एक तो PV is equals to nRT है. दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? एक तो ये तरीका है, इससे तो प्रूव कर लेंगे, लेकिन एक डायरेक्ट प्रूव करना हो तो उसकी क्या इक्वेशन है? मैं तुम लोगों को उसकी तरफ लेके भी चलता हूँ. अभी हम जरा वो कर लेते हैं, इसको डिराइव भी कर लेते हैं. गौर से सुना जवानों. PV is equals to nRT में n क्या चीज होती है? n is number of moles, राइट? ये प्रूव करने को आ सकता है, याद रखिएगा जो मैं प्रूव करने जा रहा हूं अभी. देखो, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, it can be written as number of molecules over Avogadro's constant, correct? Well done, Hussein. Well done, Arshia. Number of moles जो होता है वो number of molecules over Avogadro's constant. Avogadro's constant की वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन होती है. So आप PV is equals to nRT में PV is equals to n over Na into R into T भी लिख सकते हैं. Well done, Zephyr. शाबाश. So जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे जवानों, you'll get PV is equals to n into R over Na into T. अब ये R over Na क्या चीज है? What is this R over Na? क्या है जी R over Na? ये R over Na जो है ये कहलाता है एक कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. NKT is equals to PV. और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन होती है, which is 1.38 10 to the power minus 23. ये मैं इसलिए प्रूफ करा रहा हूं कि प्रूफ करने को आ सकता है. सही है. अब उसने कहा है कि बताओ जी व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मैं यहां पे कर देता हूं PV is equals to n और ये KT डिवाइड करते हैं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने डायरेक्ट निकालते हैं. प्रेशर है जी 4.9 into 10 to the power 5. वॉल्यूम है 2.4 into 10 to the power 3. मुझे बताओ क्या ये वॉल्यूम की वैल्यू सही है? Is the value of the volume correct? And if it's not correct, then what's the problem with it? The problem with it is it's in cm cube. You have to convert it to meter cube. अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले. फोकस करो. MLT मैंने क्या कहा था कि कभी भी मुझे लेंथ का यूनिट नजर आए तो वो मीटर होना चाहिए. सेंटीमीटर कहां से आ गए? सो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका सीधा 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया करो. याद रखो 1 cm क्यूब is 10 to the power -6 मीटर क्यूब. सही है.
So ये pressure into volume आ गया divided by Boltzmann constant 1.38 into 10 is power minus 23 into the temperature. ये 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. अभी तो ऊपर बता के आए हैं कि ये सेल्सियस में नहीं हो सकता, ये तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है. सो दिस टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन्स. सो अब यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 273. सॉल्व. शाबाश, सॉल्व करें इसको. So we'll have 4.9 10 to the power 5 times 2.4 10 to the minus 3 divided by 1.38 10 to the minus 23 times 373. Well done, Hussein. Shabash. Well done, Abdurrahman Durrani. The value of n that I get is 2.28 into 10 raised to the power 23. क्या आप लोगों का भी ये जवाब आ रहा है? Exactly. 23. Yes, Arshia. तुमने 32 लिख दिया, तो I know तुमने सही निकाला है, तुमने सिर्फ नंबर स्लिप कर दिए. But I hope this is clear. ये अगला पार्ट जो ना ये सिलेबस से निकल चुका है, so you don't have to do this now. ये mean distance between molecules of the gas is no longer there. आगे चलें जी. वैसे करा देता हूँ, क्या इसमें मुश्किल बात क्या है? देखो, इसके अंदर करना ये होता है कि आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस देखना होता है. किधर है ये? देखो सेंटीमीटर में कह रहा है. सेंटीमीटर में कह रहा है ना, तो समझोगे ये वो सेंटीमीटर क्यूब से लिंक्ड है. आपने क्या करना है, आपने मीन डिस्टेंस निकालने के लिए, कल को आ गया तो आप कहेंगे कि क्यों मिस करा दिया था. मीन डिस्टेंस निकालने के लिए आपने वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड कर देना है बाय द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड कर देना है बाय द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट यू फाउंड. सो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? वॉल्यूम गैस है 2.4 × 10⁻³ cm³. मुझे बताओ, अब इसको कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे? बताएं. विल यू कन्वर्ट इट डाउन टू m³? The answer is no, because we need the answer in centimeters, so there's no need to convert. Karo divide. So 2.4 into 10 is to the power 3 divided by your answer, and the thing that you end up getting is 1.04 into 10 is to the power minus 20 cm³. Does that make sense? ये किसका वॉल्यूम आ गया? गेस करें, ये किस चीज का वॉल्यूम आ गया? Yes, these values, the constants are given in the data booklet. Correct. ये किस चीज का वॉल्यूम आ गया? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल. वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल. जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल आ जाए, आपने याद रखना है कि ये जो मीन डिस्टेंस होता है, this is the cube root of the volume of one gas molecule. ये उसका cube root होता है. Mean distance is the cube root of the volume of one gas molecule. So cube root ले लो of 1.04 into 10 is power minus 20. या 1.05 into 10 is minus 20. Actually, मेरा आंसर आता 1.05 into 10 is power minus 20. I will get 1.05 10 minus 20. Cube root लो इसका. Your answer will be 2.19 into 10 raised to power minus 7 centimeters.
सो मीन डिस्टेंस निकालने के दो स्टेप्स. नंबर 1, find out the volume of one molecule and just take the cube root of that, and that will be your mean distance. Chale ji, let's do question number 3. Really good question. What is meant by the internal energy of a system? Don't we need to multiply by 2? No. This part is not required now, लेकिन मैंने इसलिए करा दिया, ये सिलेबस में काफी ग्रे एरियाज भी होते हैं, मैं इसलिए मैंने करा दिया आपको. State what is meant by the internal energy of a system. It is the microscopic sum. Shabash. Of kinetic energy and potential energy of all the molecules in the body which are in constant random motion. शाबाश जवानों, मेरे साथ हो ना, जागे हुए हो, वो सो तो नहीं गए? रात की नींद अपनी पूरी किया करें, रात सोने के लिए बनी है. Part B, explain by reference to work done in heating whether the internal energy of the following increases, decreases, or remains constant. Part 1, the gas in a toy balloon when the balloon bursts suddenly. बड़ा अच्छा सवाल है, शाबाश. By reference to work done in heating. अब देखो, ये बलून बनाओ, ये बलून है. The gas in a toy balloon when the balloon suddenly bursts. मुझे ये बताएं कि by reference to work done in heating की बात हो रही है, तो उसने क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन किया है कि बलून को हमने आग लगाई? आपने सिचुएशन को पढ़ना और फिर आपने बताना है कि हीटिंग के साथ क्या हो रहा था और वर्क डन के साथ क्या हो रहा था. सो क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में, द गैस इन अ टॉय बलून व्हेन द बलून बर्स्ट सडनली, इसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि आपने आग लगाई हो? नहीं. सो अगर आपने नहीं लिखा हुआ कि आपने आग लगाई है, तो उसका मतलब क्या है? यू विल से नो heat enters or leaves the gas. तो ये तो हो गया उस चीज का जवाब, रेफरेंस टू हीटिंग. नाउ रेफरेंस टू वर्क की बात करते हैं. मुझे ये बताओ कि जब वो बलून बर्स्ट करेगा तो ये गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी या गैस एक्सपैंड करेगी? बलून जब फटेगा, जब ये बलून फटेगा तो फटने के लिए उसको यूं कर जाना पड़ेगा ना, तभी तो फटेगा. सो गैस करेगी एक्सपैंड. ठीक है? सो वर्क इज डन बाय द गैस. एग्जैक्टली. उसको रयान हम इस तरह, the way we word it is, we say the work is done by the gas because the gas is expanding. So work is done by the gas. So अब हमने रेफरेंस टू वर्क डन दे दिया, रेफरेंस टू हीटिंग दे दिया. अब हमने बताना है what's going to happen to the internal energy of the gas. देखो, इंटरनल एनर्जी होता है Q plus W. ये मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख रहा हूं, U is equal to Q plus W. इस U का क्या मतलब होता है? चलो ये हम साइड पे करते हैं. U is equal to Q plus W में प्लीज लिखो, U is equal to Q plus W में U का क्या मतलब होता था? What was the meaning of U? सिर्फ मुझे U का मतलब बताओ इस इक्वेशन के अंदर. U का मतलब होता था इंक्रीज इन
इंटरनल एनर्जी, यू का ये मतलब होता है. व्हाट इज यू मीन? यू मीन्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. ये क्यू जो चीज है इसका क्या मतलब होता है? Encoded black, U does not just mean internal energy, increase in internal energy. याद रखना ये डेल्टा यू होता है. अगर आप इंटरनल एनर्जी लिख देंगे गलत हो जाएगा. और हमें इस तरह पता है कि ये डेल्टा यू अलग लिखा है, प्लस का साइन है. प्लस डेल्टा यू का मतलब होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. अब आपने ये डिसाइड करना होता है कि इंटरनल एनर्जी मेरी क्यों इंक्रीज कर रही है. उधर से आपको इन दो चीजों के मतलब मिल जाता है. मेरी इंटरनल एनर्जी इसलिए इंक्रीज कर रही थी क्योंकि मैं क्यू जो हीट है दैट वाज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, एनर्जी वाज बीइंग गिवन टू द सिस्टम. और ये W क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए W के साथ क्या होगा? खुद सोचो, ये गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं. आपने इनको पागल करना है. इनको पागल करने के लिए, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए आपने नीचे से आग लगा दी. अभी पागलों की तरह यूं दौड़ रहे हैं. अब मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड यू डू विद दिस पिस्टन कि ये और पागल हो जाए, कि ये और ज्यादा पागलों की तरह टकरे मारे. व्हाट शुड डू विद द पिस्टन? शुड यू टेक द पिस्टन इन, शुड यू टेक द पिस्टन आउट? याद रखो कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब है कि आपने गैस को पागल करना है, फट जाएगी एंड में. सो दिस इज द गैस. सो शुड यू, मेरे सवाल का इस तरह आसान अल्फाज में जवाब दे दो कि आपको पिस्टन को अंदर लेके जाना है या बाहर लेके जाना है. आपने पिस्टन को अंदर लेके आना है, ठीक है. आपने पिस्टन को अंदर लेके आना है, आपने गैस को कंप्रेस करना है ताकि गैस और पागल हो. अब जब आप पिस्टन को इन मूव करोगे, पिस्टन को इनवर्ड्स मूव करोगे, तो ये कौन सा वर्क होगा? वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन बाय द गैस? ये कौन सा वर्क होगा? ये होगा वर्क डन ऑन द गैस. समझ आई बात की? क्या होगा? वर्क डन ऑन द गैस. ये सिंबल्स याद आ गए सबको? क्लियर हो गया? अब U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में हम वापस आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ. आपको ये बाय द गैस, बाय द गैस क्या चीज है? पिस्टन अगर अंदर की तरफ लेके आ रहे हो तो वर्क डन ऑन द गैस होगा ना यार. ये गैस को जब कंप्रेस करोगे तो वर्क डन ऑन द गैस होगा ना. सही है. सो अब इस क्वेश्चन की तरफ वापस आओ. वो कहता है नो हीट एंटर्स और लीव्स. खत्म होगी कहानी इसकी. अब मुझे बताओ, वर्क इज डन, हमारे क्वेश्चन में वर्क इज बीइंग डन बाय द गैस. वर्क डन बाय द गैस को हम प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? ये बताएं. पहले आप मुझे ये बताएं कि वर्क डन बाय द गैस को हमने पीछे डिफाइन किया था वर्क डन ऑन द गैस. वर्क डन ऑन द गैस को हमने प्लस लिखा था. डेफिनेशन में प्लस होता है. प्लस का मतलब होता है वर्क डन ऑन द गैस. अब बताएं, ये माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए? दिस इज वर्क डन बाय द गैस. माइनस होना चाहिए ना. सो जब आप माइनस डब्ल्यू लिखोगे तो माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस यू. दोनों तरफ इक्वालिटी मेंटेन करनी है. ये तो नहीं हो सकता एक तरफ माइनस लिखा दूसरी तरफ माइनस नहीं लिखा. दोनों तरफ माइनस आएगा. जब आप डब्ल्यू के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हो गया है तो यू के साथ ही माइनस आएगा. और यू के साथ माइनस के साइन क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है. यू के साथ माइनस साइन का क्या मतलब होगा जवानों? यू के साथ माइनस का साइन का मतलब होगा दैट योर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. क्योंकि प्लस यू हमने डिफाइन किया, ये देखें, प्लस को हमने डिफाइन किया था एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इसकी वजह से मैं वो उसको कह रहा था एनकोडेड को कि ये इंक्रीज होता है. प्लस का मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है. लेकिन अब चूंकि माइनस आ गए, इसे इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस.
इज दिस क्लियर एवरीवन? ये बड़ा जरूरी सवाल है, इस ज़हन में रखना अपने, इस तरह के सवाल आ जाएंगे एग्जाम में. नाउ पार्ट 2, आइस मेल्टिंग. पार्ट 2 को देखते हैं. आइस मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट atmospheric pressure to form water that is more dense than ice. ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. आइस मेल्टिंग. चलो पहले हम हीट की बात करते हैं. बताएं जी, आर यू गिविंग हीट और आर यू टेकिंग हीट आउट ऑफ इट? Ice melting at constant temperature and at atmospheric pressure. Why minus with both? असद देखो, तुमने U is equal to W तो प्रूफ कर लिया था यहां पे, ये प्रूफ कर लिया था ना तुमने, U is equal to W. सो मुझे ये बताओ कि ये W क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? ये तुमने बार बार पीछे जाके देखना है पेरेंट इक्वेशन को, इसको कहते हैं पेरेंट इक्वेशन. पेरेंट को जाके देखो, पेरेंट इक्वेशन में ये प्लस W का क्या मतलब था? प्लस W का मतलब था वर्क डन ऑन द गैस. U का क्या मतलब था? U का मतलब था इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. अब आपका क्वेश्चन आपको कह रहा है वर्क इज डन बाय द गैस, तो पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा ना कि इसको नेगेटिव करोगे. अब असद खुद सोचो कि अगर तुम इसको नेगेटिव करोगे और तुम कह रहे हो कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ये कैसे मुमकिन है कि तुमने यहां पे माइनस साइन लगा दिया और यहां पे माइनस साइन नहीं लगाया? फिर तो तभी इक्वल होंगे ना जब दोनों तरफ एक ही काम करोगे. इसलिए माइनस यू आ रहा है. अब माइनस यू का क्या मतलब होता है? पेरेंट इक्वेशन में जाके देखो, प्लस यू लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब? मैंने कहा था रट्टा लगा लो. प्लस यू का क्या मतलब था? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. तो माइनस यू का क्या मतलब होगा? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. क्लियर हो गया? नाउ पार्ट 2, आइस इज मेल्टिंग. भाई मेल्टिंग का मतलब होता है हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, आग लगाई हुई आपने. सो हीट इज सप्लाइड टू द गैस. अब दूसरा था रेफरेंस टू वर्क डन. अब वर्क डन के लिए मैं इस स्टेटमेंट को रेफर करूंगा कि आइस और पानी की डेंसिटी, आपने देखा ना आइस हमेशा फ्लोट करती है. सो दैट मीन्स दैट आइस इज लेस डेंस देन वाटर. ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. ये लिखते जाना मेरे साथ साथ. डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम. सो मास ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस इज लेस देन mass of water over volume of water. अब ये वही आइस पिघल के पानी बना रही है, इसलिए मैंने mass को कैंसिल कर दिया. सही है, वही आइस पानी बना रही थी इसलिए mass सेम है, कैंसिल कर दी. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये VW को इधर ले जाओ, VI को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? VI should be more than VW. अब आप मुझे बताएं, शुरू में आप आइस थे, बाद में आप पानी बन गए. आइस का वॉल्यूम था लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 cm क्यूब, तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 15 cm क्यूब. सो मुझे बताओ, आपका फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है. फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है. हम क्या कहेंगे कि हमने वर्क डन ऑन किया है या वर्क डन बाय किया है? फाइनल वॉल्यूम कम है. गैस के बारे में सोचो, हालांकि गैस नहीं आइस है, लेकिन गैस के बारे में सोचो. फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है. फाइनल वॉल्यूम कम है, आपने काम ऑन आइस किया है या आइस ने काम किया? ये बताएं, सोच के बताना है. आइस कन्वर्ट कर रही है पानी में, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो आपने काम ऑन आइस किया है या आइस ने काम किया? वर्क इज डन ऑन आइस. बात समझ आई है? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम, मेरे हाथ को देखो, फाइनल वॉल्यूम कम है. ये मैं शुरू में ये दिखाता हूं, मैं एंड पे ये कर देता हूं. फाइनल वॉल्यूम कम है, कम होने का क्या मतलब है?
कि काम आपने पिचकाया है, कैसे पिचका दिया, वर्क डन ऑन. सो यू विल से वर्क इज डन ऑन आइस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. अब वो कहता है अब आपने वर्क डन और हीट का रेफरेंस दे दिया. व्हाट इज हैपनिंग टू द इंटरनल एनर्जी? सो इंटरनल एनर्जी होता है जवानो U इज इक्वल टू Q प्लस W. हीट इज सप्लाइड टू द गैस, सो ये भी प्लस है. वर्क इज डन ऑन, हीट इज सप्लाइड, मैं गैस को लिख रहा हूं, हीट इज सप्लाइड टू आइस. आइस लिखे, आइस की बात हो रही है. हीट इज सप्लाइड टू द आइस, सो इसको प्लस लिखोगे. वर्क इज डन ऑन द आइस, इसको भी प्लस लिखोगे. और चूंकि ये दोनों प्लस हैं तो ये एंड में जो चीज निकलेगी ये भी प्लस होगा ना. इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. क्या ये क्लियर हो गया? असद, व्हाई masses आर इक्वल बट वॉल्यूम्स आर नॉट? यार वो बॉन्ड्स का थोड़ा गेम होती है उसके अंदर. इसको इसी को कहते हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर इसलिए सेम है क्योंकि वही आइस पिघल के पानी बना देती है. लेकिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन की वजह से वॉल्यूम में डिफरेंस आता है. तभी तो आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर. इसको बोलते हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. यू कैन गूगल इट. अली, वर्क डन करने से वॉल्यूम कैसे कम हो गया, समझ नहीं आई. यार अली ये देख, शुरू में आइस का इतना वॉल्यूम था 30 cm3. जब ये पानी बना तो पानी 15 cm3 बना. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ ना कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. कि मैंने यहां पे ही प्रूव किया. और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? वर्क डन ऑन या वर्क डन बाय? तो मैंने कहा था उस केस में तो अपनी वो गैस के कंटेनर को समझा करो कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन ऑन होता है, वर्क डन बाय होता है. इसलिए हम उसको बोलते हैं वर्क डन ऑन. इज इट नाउ क्लियर एवरीबॉडी? यस, आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? चलो, perfect. Let's move on to the next question. SHM. क्या बात है, आज हमने मेरे ख्याल है we've done like कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज किए आज हमने? ये हमारा आखिरी सवाल होगा और टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया. आज हमने ग्रेविटेशन रिवाइज किया है. आज हमने दूसरा क्वेश्चन किया, that was of ideal gases. ये third question was laws of thermodynamics. And the fourth is SHM. Done 4. Try on. Exactly. चलो जी. क्वेश्चन 4 के ऊपर आने से पहले फैजान ने और कश्यप ने 2 बातें पूछी हैं. देखो फैजान, in the previous part, how is work done by the gas like there was no heat and volume decrease? क्यों नहीं है? वॉल्यूम रेट डिक्रीज है ना, क्योंकि ये लाइन उसने इसलिए तो दी आपको. आइस, वाटर इज मोर डेंस देन आइस, ये इसी को समझाया उसने कि आइस और पानी की डेंसिटी के रिलेशन को यूज करते हुए आपने वॉल्यूम के ऊपर आना है. और वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिया कि जब डेंसिटी ऑफ आइस कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से तो क्या होगा. पहली बात. दूसरी बात, कश्यप ने पूछा वर्क डन इज प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम. सो
अच्छा, फैजान अली इज आस्किंग फॉर पार्ट 1. मैं बताता हूँ पार्ट 1. वर्क डन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, सो शुड द वर्क डन आल्सो डिक्रीज? क्यों? वर्क डन शुड बी नेगेटिव ना. वर्क डन होता है प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. और से देखो, फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा कम है, इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा है. वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं, हम डिक्रीज इंक्रीज की बात नहीं कर रहे होते. सो अगर तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब होगा, या पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होगा? गॉट इट? नाउ इन पार्ट 1, फैजान, इन पार्ट 1 उसने कहीं पे नहीं लिखा हुआ हाउ इज वर्क डन बाय द गैस. हाँ, उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि हीट एंटर्स और लीव्स द गैस. आपने फैजान कभी नोटिस नहीं किया कि वो बड़े बड़े बलून फट जाता है कभी? बलून, मेरी बेटी की बर्थडे हुई पिछले दिनों, बलून खुद ही एक्सप्लोड कर गया. और वो क्यों एक्सप्लोड कर गया होगा? वो गैस किसी ना किसी तरह एक्सपैंड हुई होगी. सो गैस ने काम किया होगा. हो सकता है कि वो जो बलून का मटेरियल हो वो कमजोर हो, तो गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स को टकरे मार रहे होते हैं, वो टकरे मार रहे होंगे तो वो फट गया होगा. समझ आ गई? इस तरह उसके लिए कोई हीट में किसी ने आग नहीं लगाई थी उसको. ठीक है, आग नहीं लगाई थी फिजान किसी ने उसको. लेकिन अगर आपका बलून का मटेरियल कमजोर हो तो गैस रहेगी अंदर ट्रैप उसके. तो कोई भी वजह हो सकती है बलून के फटने की, जरूरी नहीं है कि हमेशा आग लगाई जाए. Alright guys, question number 4 now. Part A, use figure 4.2 to state two values at t at which the mass is moving downwards with max speed. So ये एक mass है जो oscillate कर रहा है ऊपर नीचे. बस आखिरी सवाल है, जल्दी जल्दी कर लो इससे पहले कि वी स्टार्ट गेटिंग बॉम्ब. मेरा तो दिन अभी शुरू हो रहा है, तुम लोगों के सोने का टाइम हो रहा होगा, बट होना नहीं चाहिए. State two values at which the mass is moving downwards with maximum speed. और जवानों मेरी बात सुनो, ये मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम स्पीड होती किधर है, मीन पोजीशन पे या पीक पोजीशन? पहले तो मुझे ये बताएं आप, मैक्सिमम स्पीड कहां पे आती है? मैक्सिमम स्पीड, पेंडुलम के बारे में सोचो, पेंडुलम के बारे में सोचो. अभी अभी दिमाग हिल रहा है ना यूं यूं. पेंडुलम के बारे में सोचो. मैक्सिमम स्पीड कहां पे आती है? मैक्सिमम स्पीड आती है मीन पोजीशन पे. और जीरो स्पीड किधर होती है? जीरो स्पीड कहां पे होती है? जीरो स्पीड होती है आपकी पीक पोजीशन पे. आदम, आदम नहीं, सॉरी, या एवरीबॉडी गॉट इट राइट. ओके, परफेक्ट. सो जीरो स्पीड होती है पीक पोजीशन पे, मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन पे. और उसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, पेंडुलम के बारे में सोचो कि जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ, तो ये एंड पे जाके रुकता नहीं है, रुकता है तो वापस आता है ना. सो जब वो रुकेगा उस टाइम पे कहां पे होगा? वो पीक पोजीशन पे होगा अपनी. ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है. सो वो कह रहा है कि हमें ये बताएं कि मैक्सिमम स्पीड किधर है. तो मैक्सिमम स्पीड का पहला मतलब तो ये होगा कि हम मीन पोजीशन देख रहे हैं. आप मुझे ये बताओ जवानों, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? मीन पोजीशन, ये मीन होता है. मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, मैक्सिमम या जीरो? मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. या हसीब, ये सुबह 5 बजे से शहजादे बैठे हैं, शहजादे और शहजादियां, सलूट मारे आप इनको. मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, और ये जो पीक पोजीशन होती है इस पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है. इसके अंदर हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड. गॉट इट? अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, दिस ग्राफ इज शोइंग यू द कंप्लीट मूवमेंट.
It shows कि वो length L of the spring is 17 centimeters, it comes down to 13 centimeters, then goes back up, then comes down. ये पूरी मूवमेंट दिखा रहा है. मुझे बताओ कि इसकी मीन पोजीशन किधर होगी? बताएं किधर होगी मीन पोजीशन? इस ग्राफ का मीन किधर है? शाबाश. इस ग्राफ का मीन होगा 17 और 13 का सेंटर. 17 और 13 का सेंटर. सो आपने पहला काम ये करना होता है ऐसे सवालों में, वो मीन पोजीशन को लेबल कर देना होता है. समझ आई बात की? सो मीन पोजीशन को लेबल कर दो. ये लेबल कर दिया हमने. ये है जी मीन पोजीशन आपकी. सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन. अब हमने कहा है कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो यहां पे होगी, इन पोजीशंस पे. ओके. सो मुझे ये बताओ कि अगर इसको मैंने ऑसिलेट कराना है, ये सामने पड़ा हुआ है आपके, और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बढ़ रही है, तो मैंने इसको ऊपर किया है या नीचे पुल किया है? अगर इनिशियल लेंथ 17 है तो मैंने किधर पुल किया हुआ है इसको, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सोच समझ के बताना कि इनिशियली आपने इसको खींचा हुआ है या कंप्रेस किया हुआ है. इनिशियली आपने उसको खींचा हुआ है नीचे, क्योंकि उसकी इनिशियल लेंथ बहुत ज्यादा है, 17 है. बाद में देखिए 13 हो जाती है. क्वेश्चन नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेस वर्टिकली. डिस्प्लेस वर्टिकली का मतलब ये भी तो हो सकता था कि आप ऊपर लेके गए, छोड़ा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई. लेकिन आपकी चूंकि इनिशियल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है. इनिशियली इट्स स्ट्रेच्ड. सो इनिशियली इट्स लाइक दिस, फुल नीचे आया हुआ है, ये इधर पहुंचा हुआ. समझ आई बात की? सो जवानों, जब छोड़ोगे इसको, जब इसको रिलीज करोगे तो कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा ना. जब इसको रिलीज करोगे तो ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा उसकी लेंथ के साथ? उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी. ऐसे ही है ना. जब उसको रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो वो ऊपर जाएगा, उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी, और उसकी लेंथ कम होते 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 कहां पहुंच जाएगी? 13 पे पहुंच जाएगी. फिर 13 सेंटीमीटर के बाद वो फिर नीचे आना शुरू करेगा, क्योंकि ऑसिलेशंस हो रही हैं. क्या ये ग्राफ सबको समझ आ गया कि यहां से लेकर यहां तक यू आर गोइंग अप, यहां से लेकर यहां तक यू आर गोइंग अप, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यू आर गोइंग डाउन, क्योंकि आपकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ इंक्रीज कर रही है. इज इट नाउ क्लियर? सो उसने कहा स्टे टू वैल्यूज एट टी एट विच द मास इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ मैक्सिमम स्पीड. डाउनवर्ड जाना है, ऊपर नहीं जाना. हाँ हसीफ, it will be uploaded. Stay to values of t at which the mass is moving downwards. तो हमने डाउनवर्ड जाना है. सो डाउनवर्ड जो टाइम आएगा मैक्सिमम स्पीड वाला, अब मीन लाइन को देखो, ये ना कह देना ये गलत है, ये होगा, क्योंकि ये थी डाउनवर्ड मूवमेंट, लेंथ बढ़ रही है. लेंथ जो दो जगहों पे बढ़ रही है, एक यहां पे लेंथ बढ़ रही है और एक इधर लेंथ बढ़ रही है. ये दोनों वो जगहें हैं जहां पे आपकी लेंथ इंक्रीज कर रही थी. अब आपने हमें बताना है कि वो टाइम कितना था. सो वो टाइम निकालने के लिए आपको देखना है ये वाला टाइम कितना था. गॉट इट? और आपने देखना है ये वाला टाइम कितना था. मेक सेंस? सो अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये 0.2 है, this is 0.21, 0.22, 0.23, so this is going to be 0.225. बीच में है ना दोनों के, 0.225 आ गया. और ये जो अगला है 0.51, 0.52 और ये 0.53, ये बीच में है दोनों के. ये the thickness of the marker is
हाई है जिसकी वजह से वो सेंटर एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा, बट सेंटर है, तो 0.525. सो योर आंसर विल बी, तो ये सेंटर है दोनों का, वो मेरे थिकनेस पे ना जाना, इट्स द सेंटर ऑफ this point and it's the center of this point. So 0.225 and 0.525. Is it clear, everybody? Point 225 और 0.525 वो जगह हैं जहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है. ओके, अब वो कहता है determine for these oscillations the angular frequency omega. कैसे निकालेंगे ओमेगा इस ग्राफ को देख के? हमेशा ही आपको सवाल इसी तरह का आ जाना है, कैसे करेंगे ओमेगा? What is omega? How do we do it? ओमेगा निकालने के लिए आप करोगे 2 पाई ओवर टी. टाइम पीरियड कितना है इसको? ये देखें, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ग्राफ बन रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 0.3 सेकेंड्स. सो आप करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 0.3. करो कैलकुलेटर में, बड़ी देर होगी कैलकुलेटर ही संभालने की आज. 2 पाई divided by 0.3. So the answer is going to be 20.94 या 20.9 radians per second. समझ आई सबको? 20.9 radians per second. अगला पार्ट कहता है show that the maximum speed of the mass is 0.42 meters per second. So जवानों याद रखो कि स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज टू फाइंड एनी स्पीड इन एसएचएम. कोई भी स्पीड निकालनी हो एसएचएम में ये वाला फॉर्मूला चलेगा. लेकिन जब मैक्सिमम स्पीड का लफ्ज खास तौर पे आएगा, मैक्सिमम स्पीड का लफ्ज खास तौर पे आएगा, तो हमने डिसाइड किया था मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती है? मैक्सिमम स्पीड वहां पे होती है जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो? 0, क्योंकि आप मीन पे होते हैं. सो जब आप मीन पे होंगे तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होगा, आपका मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है, v मैक्स का फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा ए. आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? समझ आइए सबको? ये ओमेगा ए याद रखना है. सो ओमेगा की वैल्यू v मैक्स निकाल रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू 20.9. एम्पलीट्यूड कितना है बताओ जवानों, कितना एम्पलीट्यूड है इसका? ये ग्राफ में देखो, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्या एम्पलीट्यूड है इस ग्राफ का? इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड है इतना. ये कितना है? Isn't this 2 centimeters? So this will be like 2 into 10 is to the power minus 2. So 20.9 into 2 into 10 is to the power minus 2. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. So 20.9 into 2 into 10 to the power minus 2. Your answer will be 0.4188, which will be like 0.42 meter per second. क्लियर हो गया सबको? ये बस आखिरी सवाल है, डोंट वरी, खत्म हो गया. और माशाल्लाह लाइट भी आ गई बाहर. देखें, खुशी ऐसी होती है कि पता नहीं कितना काम कर लिए. लेकिन ऑनेस्टली बताऊं कि ये बेस्ट टाइम होता है, इससे बेहतर टाइम नहीं मिलता पूरे दिन में. आज ट्राई करना. इतने फोकस पढ़ाई कभी नहीं तुम लोगों ने जिंदगी में की होगी, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई क्या करेंगे. Alright, so 0.42 meters per second is the answer, but provided नींद पूरी होनी चाहिए. हाँ, मैंने एक चीज और बतानी थी. वो दूसरी चीज मैंने ये बतानी थी, मैं इस ग्राफ के ऊपर आता हूँ, ये ग्राफ बड़ा जरूरी है. दूसरी चीज मैंने ये बतानी थी कि ये जो एक चीज होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सबको मालूम है, एसएचएम की डेफिनेशन है. जवानों जब वो कहते हैं ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, तो याद रखना कि x की जगह बस a डाल देना. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर a विल बी योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन. इसी तरह मैंने आपको वेलोसिटी की इक्वेशन बताई, और फिर मैंने v मैक्स का फॉर्मूला, v मैक्स इज ओमेगा a. सो याद रखो जब भी वो मैक्सिमम का लफ्ज यूज करता है ना, तो वो a आना चाहिए बीच में. ठीक है, अब आखिरी इस क्वेश्चन को देखो.
यू हैव टू स्केच द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये हमेशा याद रखो, एक सर्कुलर शेप बनती है या अंडे की शेप बन सकती है डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेट्स किधर हैं आपके। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि मुझे बताओ यहां पे मैक्सिमम स्पीड कितनी निकाली थी हमने। व्हाट वाज योर मैक्सिमम स्पीड दैट यू फाउंड आउट? पीछे वाले पार्ट में 0.42 थी ना, निकाली थी, ये प्रूफ की थी। सो आपने ग्राफ में जाना है और 0.42 ढूंढ लेना है। आई थिंक दिस इज 0.42। ढूंढ लिया? उसके बाद यही वाला पॉइंट नीचे ढूंढ लेना है, -0.42। ढूंढ लिया सबने? अब एक्स एक्सिस पे आओ और बताओ कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आपकी स्पीड 0 होती है, उससे आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। एम्पलीट्यूड कितना था आपका? योर एम्पलीट्यूड वाज 2 सेंटीमीटर। सो आपने यहां पे +2 पे एक लाइन लगानी है, -2 पे लाइन। ये 4 पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे चाहे मैं याद रहे। 4 पोजीशंस बना दें, नंबर मिल गया आपको। और उसके बाद क्या करना है? उस वक्त कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने बस इनके अंदर से एक शेप को निकालना है, एंड दैट शेप शुड टच ऑल साइड्स, पास थ्रू ऑल ऑफ द पॉइंट्स। कोशिश कर लें, कि मेरा तो ये आईपैड है तो थोड़ा मुश्किल है काम, लेकिन यार नीचे सड़ गया क्या यार। फ्री हैंड बना लेते हैं। this and this, इस तरह की शेप होगी। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है। Is this clear everyone? हाँ अर्शिया, मैंने कहा था ना कि वो जब उसकी शेप वो सेटल होगी, वो जब सारे पॉइंट्स को कट करेगा, वो खुद ही उसकी शेप सेटल हो जाएगी। सर्कल बन रहा है या एलिप्टिकल बन रहा है। कंपास से बनाएंगे, वो कंपास से बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। फ्री हैंड बना दे। गॉट इट? असल में ऐसे ही है। Done, guys. Well done. That is it. That is the end. We've approached the end of today's task. I hope you guys learned something. Inshallah, अब पढ़ो, अब सोने की जरूरत नहीं है, अब कुछ देर और पढ़ लो। एंड देन वो कहते हैं कैलूला करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। सो ही वुड गेट टायर्ड अराउंड 12 p.m. or 1 p.m. early afternoon, and that is the time you should take a nap. सही है? सो अभी सोने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का दिमाग चल रहा है तो चला लो, और इंशाल्लाह टेक अ नैप अराउंड मिड डे। हाउ ओल्ड एम आई नाउ? गेस करो। ठीक है, चले इंशाल्लाह। हाउ मेनी years of passive should we do? I'm in my passive session, I'm doing like 10 12 नहीं, actually 15 years. बट अगर किसी ने करने हैं तो 2-3 साल के भी हो सकते हैं। ठीक है, डन। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एवरीबॉडी, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप भी सदा खुश रहें हसीब, टेक केयर। और मुस्कान तुम बैठी हुई अभी तक? खुदा हाफिज एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक।